Okay, good morning everyone. Is it visible? Okay. In the last lab, we have started the practical 3 with operators in, between, not in, and not in. Right? So, as per the practical list, I hope all of you have completed these function based queries. Right? Here, one is missing, that is the length of UPVCA. Let me explain that thing also. Select length length into bracket, let's say MEFGI from D1. Let's run. It's a file. So by using length function, you can run it. You need to give the thing in a single quotation, right? So this thing you can perform. Other than this, nothing is a new. Yes, this one is the new, right? 10th query of function-based query. Lower unit cap, upper substring length, LTRIN, RTRIN, LPAD and RPAD and constraint-based queries. So first of all of you do one thing. Create a table student and create a table register. In that you need to create a only simple table with roll number, data type and size, name, data type size, branch, address, and all these things. No need to insert any values, right? Value हमें insert नहीं करनी. As I told you, there are mainly two methods to add the integrity constant. One, while you are creating the table that we have performed in a practical 3. Agree? Second thing, if you have already created the table and then later on at any time if you want to add the constraint, then you can. So that thing we are going to implement. So we are not changing in our base tables, account loan उसमें हमें कुछ change नहीं करना है. So that's why we are creating these two new tables, student and register. ये दो टेबल आप बना लो सिंपल, उसमें 5 मिनट लगेगी. ठीक है, क्रिएट इट. Everyone create the register and student table.
Okay, I hope all of you have created these two tables, right? Let's move forward. Student table create हो गया. Then add primary key roll number and provide constraint name prime roll number. This is your first query. So we have just created the table. Now we want to add the primary key in existing table with constraint name. Constraint name should be unique. It must be unique. So based on that constraint name, you can do the activity. So add primary key हम कैसे कर रहे थे? Similar way, I have created the table. Create table students. This syntax I used. Now प्राइमरी की ऐड करने के लिए अल्टर कमांड यूज करो. अल्टर टेबल स्टूडेंट्स बिकॉज वी वांट टू ऐड द primary key, so that's why you use the alter table because table is already exist, right? So alter table student add उसके बाद प्राइमरी की एंड रोल नंबर एज अ प्राइमरी की ऐड करनी है. सो सिंपल हो गया. now what is this constraint prime underscore roll number? Read the question and provide the constraint name prime underscore roll number. It means whatever constraints we are setting, we need, we need to give the name of that constraints. So that name you need to give before this constraint. So this is constraint name. Constraint is the keyword. Remember, constraint is the keyword. Prime underscore roll number is the constraint name. So from the entire database, whenever you search prime underscore roll number, you will get this primary key on student table. It will be always unique. ये unique ही रहेगी. अगर आपको दूसरे टेबल में प्राइम अंडरस्कोर रोल नंबर देना है तो वो नहीं दे पाएंगे, राइट? So this is the way. Let's enter into the table. Or before that, let's have the student table. स्टूडेंट टेबल कहाँ गया? ये रहा. लेट्स चेक. स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है? नहीं है, नलेबल है. इट मींस प्राइमरी की सेट नहीं की है. नाउ वी आर सेटिंग द प्राइमरी की. Enter table students, add constraint prime underscore roll number, primary key and roll number, right? Now let's check. In a find table, student table, nullable is no. It means primary key we have set. Primary key आपकी set हो गई. Okay, fine. This is your first query. How to add the primary key? आप सोचो, प्रैक्टिकल 3 में अकाउंट टेबल में हमने अकाउंट नंबर प्राइमरी की ऐड की थी. कैसे? क्रिएट टेबल अकाउंट इनटू ब्रैकेट अकाउंट नंबर ब्रैकेट टू साइज एंड देन प्राइमरी की ऐसा वर्ड लिया था. उस टाइम पे नाम बाम कुछ नहीं ऐड दिया था. नाम आपको ऐड करना है
तो आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज द कंस्ट्रेंट प्राइमरी अंडरस्कोर रोल नंबर। इसकी जरूरत कब पड़ेगी? इफ यू वांट टू ड्रॉप द प्राइमरी की, यू कैन ड्रॉप इट टू वेज। कोई भी कंस्ट्रेंट आपको ड्रॉप करना है, हटाना है, तो आप दो तरीके से ऐड कर सकते हो। फर्स्ट वन, बाय अप्लाइंग सिंपली ड्रॉप प्राइमरी की, तो प्राइमरी की ड्रॉप हो जाएगी। दूसरा, कंस्ट्रेंट नेम से। कंस्ट्रेंट नेम अभी हमारा क्या है? प्राइम अंडरस्कोर रोल नंबर। तो प्राइम अंडरस्कोर रोल नंबर हम लिखेंगे तो भी कंस्ट्रेंट आपका रिमूव हो जाएगा। कुछ केसेस से है, लाइक फॉरेन की है, और फ्यू केसेस आर देयर इन दैट it cannot be able to search the column. So at that time, constraint name will help us, right? So this is your first query. Now second query is add not null constraint to name comma branch for the student table. It means student table पे name and branch not null constraint add करना है, ठीक है? So not null constraint आप ऐसे ही ऐड करेंगे, alter table modify, alter table student modify। अब आपका क्वेश्चन, modify सर क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो कॉलम एग्जिस्ट तो है ही, उसके ऊपर मॉडिफाई करना है कि नॉट नल। सुनो, डिफरेंस समझो, कब ऐड लेना है, कब मॉडिफाई लेना है। प्राइमरी की हमने सेट की रोल नंबर पे, तो रोल नंबर पे प्राइमरी की ऑलरेडी थी कि नहीं थी? नहीं थी ना, कुछ नहीं था, इसलिए हमने ऐड की। तो दैट्स व्हाई वी यूज द ऐड वर्ड। नाउ हियर नॉट नल कंस्ट्रेंट। सो नेम के अंदर पहले से कौन सा कंस्ट्रेंट था? नल था, उसको हमें नॉट नल कंस्ट्रेंट चेंज करना है, तो मॉडिफाई कीवर्ड यूज हो रहा है। समझ में आया? सो मॉडिफाई यूज्ड हमने किया। सो अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई, नेम कॉलम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट, ब्रांच कॉलम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट। व्हाट इज दिस कंस्ट्रेंट n1? इट इज द कंस्ट्रेंट नेम। समझ में आ रहा है? कंस्ट्रेंट इज द कीवर्ड, n1 इज द कंस्ट्रेंट नेम, n2 इज द कंस्ट्रेंट नेम। क्लियर? तो अभी हमने देखा था कि ये दोनों नल थे। Let me run it. टेबल अल्टर, फाइंड टेबल जाओ, स्टूडेंट टेबल जाओ, और देखो नो नो आ गया, नो नो डिस्प्ले हो गया। इट मींस नॉट नल। आप इसको नल नहीं रख सकते। क्लियर? क्लियर? आर यू गेटिंग? Next query, add check constraint and check name is in capital letter. It means we need to add the check constraint। उसके अंदर कंडीशन हमें क्या डालनी है कि name is in capital letter, capital letter में name होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास ये है, alter table student add constraint ck, constraint ck is the name, check name is equals to upper into the name। upper it means जो भी स्ट्रिंग हम कॉलम में डालेंगे, नेम कॉलम में, उसको अपर केस में कन्वर्ट करके फिर से स्टोर करेगा, ठीक है? सो चेक कंस्ट्रेंट सिमिलर नॉट नल कंस्ट्रेंट की तरह ही हम ऐड करते हैं। टेबल अल्टर्ड। सो अब जब भी हम कुछ इंसर्ट करेंगे और स्मॉल में इंसर्ट करेंगे, तो वो कैपिटल में है कि नहीं वो चेक करके हमें स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट करने देगा। नेक्स्ट, ड्रॉप दी प्राइमरी की एंड ड्रॉप दी कंस्ट्रेंट। अब प्राइमरी की ड्रॉप करनी है, सो प्राइमरी की आप दो तरीके से ड्रॉप कर सकते हो। फर्स्ट, अल्टर, इजी वाला पहले, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप प्राइमरी की, सो प्राइमरी की आपकी ड्रॉप हो जाएगी। दूसरा तरीका, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कंस्ट्रेंट प्राइम अंडरस्कोर रोल नंबर। इट मींस दैट इज अवर नेम, प्राइम अंडरस्कोर रोल नंबर। तो आप कंस्ट्रेंट कीवर्ड यूज करो और उसका नाम यूज करो। सपोज आपको यहाँ पे देखो नॉट नल कंस्ट्रेंट का नाम क्या है? n1। नॉट नल कंस्ट्रेंट आपको डिलीट करना है,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कंस्टेंट n1। क्लियर? आप बोलो वो मेथड आप यूज कर सकते हो। मैं आपको ये वाली मेथड इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। पूरा कॉपी नहीं हुआ है। to find table, check the student table, yes आ गया, nullable it means primary की हट गई। clear? agree? Yagnesh, with you? Yes, sir. Okay. Yes, Yagnesh. With you. Okay. Fine. अब क्या है कंस्ट्रेंट? ड्रॉप दी कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट डिलीट करना है वो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट है। एक तो नोटनल कंस्ट्रेंट n1 है, एक नोटनल कंस्ट्रेंट n2 है, प्राइमरी की डिलीट कर दी है, चेक कंस्ट्रेंट ck है, हम कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं अभी यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट डिलीट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है वो आपको बताना है एरर आइडेंटिफाई करके, एरर आती है कि नहीं आती है। कैन नॉट ड्रॉप कंस्ट्रेंट, ये एरर का सॉल्यूशन कोई देगा? ये સર આપણે નોટનલ કન્સ્ટન્ટનું નામ નોટનલ 1 નથી, n1 ને n2 એવું છે. Yes, Raj, you are right. If you observe, we have given n1 constraint name and n2 constraint name. So here we need to write n1 or n2. Clear? So let me write n1. Let me run it. Table alter. ठीक है, इस तरह आप n2 भी कर सकते हो, ck भी कर सकते हो। क्लियर? वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिलीट दैट कंस्ट्रेंट यू कैन डिलीट इट। तो ये क्या सीखा हमने? जो टेबल ऑलरेडी नॉर्मल में हमने एग्जिस्टिंग बनाया है उसके अंदर कंस्टेंट ऐड करो और डिलीट करो। प्रैक्टिकल 3 में हमने क्या किया, पूरा टेबल डिलीट करके जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे तभी पूरा कंस्टेंट एक साथ ऐड कर दिया व्हाइल वी आर क्रिएटिंग द टेबल। दिस इज द डिफरेंस, बोथ वे यू कैन डू इट, राइट? नेक्स्ट में क्या है, रजिस्टर टेबल। रजिस्टर टेबल में देख लो कुछ नया है। हाँ, प्रोवाइड फॉरेन की रेफरेंस रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट टेबल, add check constraint to check names, first letter is always capital, not null constraint, foreign key register टेबल से डिलीट करना है, नॉट नल टेबल सॉरी नॉट नल कंस्ट्रेंट डिलीट करना है। अब देखो अल्टर टेबल रजिस्टर, एड कंस्ट्रेंट fk, फॉरेन की, रोल नंबर, रेफरेंस स्टूडेंट, स्टूडेंट को रेफरेंस करती है वो प्राइमरी की, वो हमें यहाँ पे यूज करनी एज अ फॉरेन की। alter table register, add, this is constraint name fk for foreign key, then foreign key roll number, reference student, it means वो रिफर किसको करेगा, स्टूडेंट टेबल को, स्टूडेंट टेबल को रिफर करेगा। अब देखते हैं will it work or not. Reference table does not have a primary key. What it means? Yes, good. We have dropped the primary key. It means again we have to copy the first query of previous स्टूडेंट टेबल की पहले परफॉर्म करनी पड़ेगी, फिर इसको अल्टर टेबल तो रिफर हो गया, हो गया। अब देखो ये हमने फॉरेन की लगा दी, इट मींस स्टूडेंट टेबल की रोल नंबर की एज अ फॉरेन की हमने रजिस्टर टेबल में लगाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ और एरर क्या आ रही है वो आपको बताना है। This unique primary key is referenced by some foreign key. So ફોરેન કી આપણે અટેચ કરી છે ને સ્ટુડન્ટ ટેબલ ની, એટલે yes, so if I want to delete this primary key of student table, then what we can do? પહેલા ફોરેન કી Delete करिए कैसे? यस Right, you are right. So first it means आपको पता चला ना कंस्टेंट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
वैलिडेशन कितना इंपॉर्टेंट थिंग है। तो फॉरेन की पहले डिलीट करो, तब भी प्राइमरी की डिलीट हो सकती है। क्लियर? सो प्राइमरी की हम डिलीट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्या क्या था, कंस्ट्रेंट ऐड करना था ना, चेक। सो अल्टर टेबल रजिस्टर ऐड कंस्ट्रेंट CK1। हाँ, CK नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि प्रीवियस में CK हमने दे दिया था, कंस्ट्रेंट नेम यूनिक ही होगा, तो CK1 मैंने दे दिया। अब ये कंडीशन है, उसमें आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है, चेक नेम्स फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए, तो पहला लेटर कैसे चेक करेंगे? अपर से तो पूरी स्ट्रिंग चेक होगी ना, अपर से पूरी स्ट्रिंग चेक होगी। तो देर इज वन कंसेप्ट सब स्ट्रिंग, अंडरस्टैंड दिस वन। चेक क्या चेक करेंगे, ये कंडीशन सब स्ट्रिंग ऑफ नेम कॉमा 1 इट मींस सब स्ट्रिंग हम लेंगे, सब स्ट्रिंग इज वन फंक्शन। I will explain this later. Substring is one function. It will cut the character from first position to end position. जो हम देंगे, तो हमने क्या दिया है, फर्स्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन, इट मींस फर्स्ट कैरेक्टर कट हो गया, is equals to upper of substring of name comma 1 इट मींस नेम स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर कट हो गया, वो अपर है कि नहीं वो चेक करेगा। सो दिस इज दी टेबल अल्टर, राइट। थर्ड है नोटनल कंस्टेंट ऐड करना। ऐड नोटनल कंस्टेंट टू नेम ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर टेबल पे कॉलम पे। सो अल्टर टेबल रजिस्टर मॉडिफाई नेम कंस्टेंट सीके टू नोटनल, ये आपको पता है, प्रीवियस वन में देखा ही है। नाउ अल्टर टेबल रजिस्टर ड्रॉप फॉरेन की, अब देखना है क्या हो रहा है वो, ठीक है। अल्टर टेबल रजिस्टर ड्रॉप कंस्टेंट FK, तो आप बोलेंगे सर प्राइमरी की उसी तरह फॉरेन की डिलीट नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे मैं सपोज लिख दूं, चेक करते हैं हम, यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं फॉरेन की नहीं, हाँ फॉरेन की का स्पेलिंग सही लिखना, फॉरेन की अल्टर टेबल स्टूडेंट रजिस्टर ड्रॉप फॉरेन की, ऐसा लिखूं तो नहीं चलेगा, फॉरेन की ड्रॉप होगी कि नहीं होगी, लेट्स चेक। मिसिंग कीवर्ड, तो प्राइमरी की तो डिलीट हो गई, उसी तरह फॉरेन की डिलीट नहीं होनी चाहिए, लाइक मोस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर डिनाइंग, तो मुझे फॉरेन की डिलीट करनी है, क्योंकि फॉरेन की डिलीट नहीं करेंगे तो प्राइमरी की डिलीट नहीं कर पाएंगे ना। तो फॉरेन की डिलीट સર करने ફોરેન કી એક કરતા વધારે હોઈ શકે, એટલે maybe કદાચ અલાઉ ન કરતું હોય એમ. maybe પ્રાઇમરી કી તો વન ટેબલ ઉપર એક જ હોય ને. मे बी। सो फॉरेन की डिलीट नहीं होगी, इसके लिए व्हाइल यू आर क्रिएटिंग अ फॉरेन की एट द टाइम यू मस्ट हैव टू गिव द कंस्ट्रेंट कीवर्ड एंड कंस्ट्रेंट नेम FK। सपोज हमने ये दिया है, अब ट्राई करते हैं ड्रॉप करने की, टेबल अल्टर हो गई फॉरेन की डिलीट, अब प्राइमरी की में डिलीट कर रहा हूं, वो भी हो गई। समझ में आया मैकेनिज्म पूरा? सो फॉरेन की डायरेक्टली डिलीट नहीं होगी, उसको डिलीट करने के लिए उसका कंस्टेंट नेम चाहिए। सो हम प्रैक्टिस वही कर रहे हैं कि सब जगह हम ये कंस्टेंट नेम सेट करें, जैसे कि कंस्टेंट FK, कंस्टेंट CK1, कंस्टेंट CK, कंस्टेंट N1, कंस्टेंट N2, ताकि कभी भी हमारे से गलती ना हो। और लास्ट है ड्रॉप नॉट नल कंस्टेंट, तो वो तो आपको पता है, अल्टर टेबल रजिस्टर ड्रॉप कंस्टेंट CK2, ये CK2 हमने एज अ नॉट नल कंस्टेंट सेट किया था। क्लियर? Do you have any query, any doubt in a constraint based query? નો સર. Any other students? Offline students? No doubt? Okay. One more concept is remaining.
but it is on a dual table. This one, 10th query of function base. Write the query for the following function: lower, init cap, upper, substring, length, ltrim, rtrim, lpad, rpad. These all are the string function. स्ट्रिंग के ऊपर हम परफॉर्म करने वाले हैं. अगर एग्जाम में पूछे एक्सप्लेन लिस्ट आउट स्ट्रिंग फंक्शन, तो वैसा ब्लैंक रख के नहीं आना, ये इजी वाला है. समझ में आया? हाँ जी. આ ફંક્શન બેઝડ ક્વેરી લગભગ બાકી છે કરાવી છે મિનિમમ મેક્સિમમ સમ નહીં. ઓકે, વાંધો નહીં. વાંધો એકવાર નહીં. દેખાડી દો ખાલી. આઈ રે, એમાં કઈ મોટું છે નહીં. સિલેક્ટ સમ select sum of amount from transaction. This is the alias name that you know, that is column name, right? Sum of amount, it means पूरे ट्रांजैक्शन टेबल में अमाउंट कॉलम जो है उस सब का टोटल 85,000 है. ठीक है, हम सम निकाल देते हैं, इसकी जगह स्टार लिख देते हैं ताकि पता चले. अमाउंट कॉलम है 10 प्लस 5,000 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15, टोटल आपका कितना हुआ? दैट इज सम, राइट? सपोज मैं यहाँ पे एवरेज लिखूं, यहाँ पे एलियास नेम हटा दे रहा हूँ, तो मुझे हर बार चेंज नहीं करना, आपको डालना है. एवरेज लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या? 70,000 इज द एवरेज ऑफ एंटायर कॉलम. इफ आई राइट मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी थी? 5,000. मैक्सिमम क्या थी? 30,000. ये हो गया. ठीक है. सो सिमिलर वे पावर फंक्शन, ये पावर 2,3, इट मींस 2 raised to 3, 2 to power 3, square root 25. So these two functions will be performed on a dual table. Dual table हमने सीखा था सिस्टम. Now few string function, ये aggregate function हो गए. String function हमें देखने हैं. Lower Varun, let's say let's run it. You can get the idea. Select lower. Lower is the string function. What we can do with the lower, whatever string we have given into a bracket as an input, it will be converted into a lower case. So lower हमने कैपिटल में दिया है वरुण, तो ये हमारा क्या हो गया? एलियास नेम मैं हटा दे रहा हूँ. फ्रॉम ड्यूअल, इसकी जगह मैं अपर लिख देता हूँ. अपर, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वरुण कैपिटल में ही है. लेट मी राइट माय नेम इन अ स्मॉल, यू विल गेट इन अ कैपिटल, राइट? इनिट कैप, इनिट कैप फंक्शन पता है आपको? इनिशियलाइज कैपिटल, इट मींस फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा मीटेक्स का. एन कैपिटल आ गया, राइट? लेंथ तो मैंने अभी बताया आपको, LENGTH लेंथ. इनकी लेंथ पता चलेगी. क्लियर? अब सबस्ट्रिंग देखना है. सबस्ट्रिंग का मतलब क्या हो रहा? स्ट्रिंग जो है उसमें से सबस्ट्रिंग हम निकालनी है. सो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग इज मिथेस, सो हमें मिथेस में से TS निकालना है. So what is the position of T? 3. So starting position is 3. कितने कैरेक्टर निकालने हैं? 3. So TES, तो मैं यहाँ पे पहले 3 लिख रहा हूँ और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. TES आ गया. So उसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रिंग, सेकंड आर्ग्यूमेंट इज starting position, third argument it means how many character you want to drop or you want to take from the starting position, that you need to remember. Let me write here 4. See the output. Yes, clear? So this is the use of substring. अब आप बोलेंगे चलो मैं स्टूडेंट वाली करता हूँ, यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ. क्या आंसर आएगा?
क्या आंसर आएगा? ES, ES, राइट? क्लियर? सब स्ट्रिंग। अब देख कौन सा फंक्शन है नेक्स्ट, लेंथ हो गया एल ट्रिम। ओके, एल ट्रिम फंक्शन। हैव यू यूज्ड ट्रिमर? यस, ट्रिमर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिमर? ट्रिमर क्या करता है? ट्रिम करता है। सो यहाँ पे एल ट्रिम है, एल मीन्स लेफ्ट, ट्रिम मीन्स कट करना। सो लेफ्ट साइड से कट करेंगे। क्या कट करेंगे? ये हमारी स्ट्रिंग है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में, लेफ्ट साइड से हम कट करेंगे। फॉर एग्जांपल एम, लेट्स रन। कट हो गया। सो दिस इज ट्रिम। सपोज एम आई कट करना है, तो जो भी आप सेकंड आर्ग्यूमेंट में देंगे उतना कट हो जाएगा। सपोज आप अभी ये बोलेंगे सर हमें आईटी कट करना है, तो बीच में से कट करना है, तो क्या आंसर है? पूरा आ गया ना? नहीं, नीचे से। तो बीच में से कट नहीं कर सकते, सिर्फ लेफ्ट से कट कर सकते हो या फिर राइट से कट कर सकते हो। राइट के लिए क्या है? आर ट्रिम। तो आर ट्रिम में देखो मैंने लेफ्ट की पोजीशन दी तो भी पूरा नाम आ गया। ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ट्विस्ट करके। तो मुझे राइट ट्रिम करना है तो मुझे लास्ट लेटर देना पड़ेगा ना। अब देखो हो गया। सपोज लास्ट में एसएच कट करना है तो MIT। क्लियर? आर ट्रिम यस सर। इजी है ये स्ट्रिंग फंक्शन। अब बचा lpad एंड rpad, lpad एंड rpad। ओके, डू यू नो पैडिंग? पैडिंग का मतलब पता है? पैडिंग का मतलब ऐड करना, एक्स्ट्रा जगह जब हो ना वहां ऐड करना। एल पैडिंग इट मीन्स लेफ्ट साइड पेड करना, आर पैडिंग इट मीन्स राइट साइड पेड करना। फॉर एग्जांपल माय स्ट्रिंग इज Mitesh, then second let me run first. See the output. See the output. What you get? 4 star and then our string. It means left side paid हो गया। क्या paid हुआ? Star. So first argument is our string. Second argument is total number of character. So आप काउंट करो, 4 स्टार और मितेश की लेंथ कितनी है? 6। तो 6 + 4 10 कैरेक्टर हो गए। और क्या पेड करना है? वो थर्ड आर्ग्यूमेंट में देना है। स्टार पेड करना है तो स्टार। सपोज मुझे स्टार नहीं करना है, डॉलर वाला होना है, इसको डॉलर वाला होना है, तो डॉलर हो गया। अब चेंज कर दो, एल की जगह आर हो गया। આપણે સર વ્હાઇટ સ્પેસ આપી શકી? लेट्स चेक। स्पेस राइट साइड नहीं दिख रही है, एल पेड दिख रहा, एल पेड लगा ले हम। राइट में तो पूरा ब्लैक ही है। चली चली कि नहीं चली? नहीं નો चली, સર નથી। નથી ચાલતી, बरोबर। व्हाइट स्पेस नहीं चाले। लेट्स से डॉट चलेगा? चला ना Yes. डॉट? यस। सो यू कैन पुट एनी कैरेक्टर हियर। सपोज मैं एम्परसेंड कर रहा हूँ और टोटल लेंथ यहाँ पे 20 कर रहा हूँ। देखो 20 टोटल कैरेक्टर है, उसमें से 6 मितेश ने ऑक्यूपाई किए और बाकी के 14 एम्परसेंड साइन आ गए। सो टोटल कैरेक्टर की लेंथ आपको यहाँ पे देनी है। यस, लेट्स चेक। एवरीथिंग शुड बी प्रैक्टिकल। कितने हुए काउंट करो। चलो मैं लेंथ घटा देता हूँ ताकि आपको पता चले। 2 character we have given ampersand and sign. So total length is exceed or as it is? 10th ही है ना? 10th ही है। समझ में आया? आप कितने भी कैरेक्टर लगाओ
लेंथ विल बी सेम। क्लियर? अब देखो आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 10th में, राइट द क्वेरी फॉर फॉलोइंग फंक्शन और दिस। तो आप सोचेंगे सर सब कुछ एक में ही कर डाले, नहीं, एक में नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है? क्लियर? यस सर। कोई भी स्ट्रिंग ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी तरह आपको ये देना है, इसको क्या बोलते हैं, एलियास नेम। यहाँ पे देखो एलियास नेम एलपेड मितेश ये सब आ रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो एलियास नेम आपको यहाँ पे देना है, एलपेड। Clear? So that's it for today, and that's it for practical 3. Here it is the end of practical 3. Now today's task, you need to complete this one, function based queries and constraint based queries. Clear? So from next lab we will start the practical 4. If you have any query, any doubt, you may ask, otherwise continue with your work. I am stopping the recording and sharing also.